Good evening, everyone. I'm Ekta Gupta, the founder of Parijay Genus and Moose Srishti Foundation. Welcome to another session on holistic health. Before starting the holistic health session, let's wishing you all very happy Water Day. Water is life, and life we all are 70. We all know that the 70% of our body is water, and water is the most important element in this planet. So, here the life is possible because we have water. So, we all must pledge and celebrate the water day every day. We need water from the 24 hours, we need water. So, that's why we should think about it now or never. कि हमें अभी क्या करना है कि जिंदगी भर हमें पानी के बिना जिंदगी बितानी है या अभी से हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं ताकि हमें हमेशा के लिए पानी मिले. सो लेट्स सेलिब्रेट वाटर डे एवरी डे एंड नाउ इट्स टाइम to welcome all of you to another session on holistic health. Our purpose today is to engage with experts from various fields focusing on natural health and to underscore the importance of respecting our bodies, the greatest gift from the universe. While we all aspire to be healthy, wealthy, and happy, often we lack the understanding of how to nurture our natural well being. The five elements of nature earth, water, fire, and space share a profound connection with the human body, and maintaining their balance is paramount for a healthy life. Joining me today, I am Ekta Gupta, and I'm a founder of Parijay and Moose Rishti Foundation. And now I welcome Mr. Kiran Kurvade. He is Director of Office of Strategic Initiatives at Chitkara University and a Gallup certified coach, multi-industry professional with 28 years experience in 2015 organizations belonging to different sectors. Since 2004, he has coached 5 lakh plus professionals in India, Middle East, and Africa, working on Mission, Flat Tummy Human, and book reading series, reviewed 100 plus books till date. So now it's time to welcome our today's speaker, Miss Madhu Pandit, founder of Inner Wellness. She has 18 years on the path of self-realization with a keen desire to share quest for inner peace and beauty with people around the coach. Madhu Pandit has grown stronger with each passing day. An MBA in HR from Narsi Monzi Institute of Management Studies, Mumbai, a certificate cognitive behavior and well-being and spiritual life coach. She is committed to reaching out to people and helping them balance professional success with personal health and happiness. Another recent feather in the cap, she is now certified happiness coach from Harvard University. She benefited Wipro, Mahindra and Mahindra, Swaraj Engines, Trident, Tylenol, Talk, Sun Pharma, Theon Pharmaceuticals, Stella India Software Private Limited, and the journey is continue. We wish you all the best for a long journey, and we wish that a lot of people get benefit from you for a holistic life. Today our title is holistic lifestyle. So how a holistic lifestyle can be benefit for the holistic health. So now over to you, Kiran. Thanks. First of all, thank you very much, Ekta, for always, involving me most of the time in this so noble mission of yours on holistic evolution, holistic health, holistic wellness, whatever we can call it. And I'm so pleased, so fascinated, in fact, by the personality of Madhu. I just gone through her profile a couple of days back. Am I audible? Am I audible? Just checking the audibility. Yeah. Okay. Great. Okay. So she has such impressive journey. Okay, I'll straight get into the questions. It's before questions, one quote is hovering in my mind. That's basically Stephen Hawking. Stephen Hawking, one of the geniuses, I think we all know. He says that ignorance is not the enemy of knowledge, but illusion of knowledge is the enemy. Right. So, Madhu, if I may ask you most respectfully, this series of questions, call it quest or whatever. Ekta read that very insightful line about yours, that is, 18 years of journey when it comes to self-realization. So keeping this quote in mind, that illusion of Stephen Hawking and your self-realization, what do you mean by self? Because many of us, they know something about the self, but still there is, ongoing endless journey of conflicts, isn't it? So how
you define self, which can be more constructive? Very beautiful question you have asked. Thank you, Ekta ji, for inviting me for this beautiful platform. Thank you, Kiran ji, for asking a wonderful question in the beginning. So, self is divided into multiple parts. So, the first part of the self is the physical level, which we all can see, we can touch ourselves, we can feel. And when we are going towards the subtler level of the self, it is becoming, we cannot see it, or we only can feel. So, the next level of the self is the mind. And then mind has different chambers, you can say. The first chamber is the intelligence, बुद्धि का स्तर. दूसरा chamber बोलेंगे हम where the information is storing, chit. In Sanskrit we call it chit, and in English we call it memory. So all the जो भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, तो all the information is storing in the memory. Or you can say the pleasant or the unpleasant aspects are storing in the memory only. So that is the very you can say very, very important part of the mind: intelligence, intellect, and the memory. And if we talk about the brain journey, which is very, very important, so all of us, we know that there are two brains in us. One is right brain and left brain. So we are not we are not going to discuss the functions of the right brain and the left brain, but we are talking about the self. So let me brief you towards the self journey only. So the first is physical, and then the mind comes. So mind has two chambers to understand intelligence and the memory, and then we have two portion of the brain, right brain and the left brain. And then when we are moving towards the self, then the most important factor comes the ego, and which is bit dangerous also, because पूरे संसार में अगर कोई जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? अहंकार इज द कारण, ego is the karan. Professional conflict, personal conflict, husband wife conflict. एक है ओपिनियन का कॉन्फ्लिक्ट, वो तो सुलझाया जा सकता है. एक है ईगो का कॉन्फ्लिक्ट, जिसको सुलझाने में समय लगता है. सो तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट आवर बॉडी नीड्स. हमें हमारे शरीर को क्या चाहिए, हमारे मन को क्या चाहिए. मन का सबसे खूबसूरत कंपोनेंट है शांति. इफ आई आस्क यू, एकता जी आपको क्या चाहिए, तो उसका बहुत खूबसूरत आंसर होगा कि मुझे खुशी और शांति चाहिए. ये दो पैरामीटर्स हैं लाइफ के, हैप्पीनेस एंड पीस. सो पूरा जो सेल्फ है, जिसमें फिजिकल कंपोनेंट है, बुद्धि का स्तर है, फिर आपकी मेमोरी का स्तर है, फिर अहंकार है, और अहंकार के बाद जब आप ये सारे कंपोनेंट्स क्रॉस करते हैं, तब आप सेल्फ पे जाके आते हैं. और वो सेल्फ जो अद्वैत है, मतलब जैसे कबीर जी की बहुत सुंदर पंक्ति है, वो बोलते हैं कि प्रेम की गली अति सांकरी, जिसमें दो ना समाए. So self is like that, no? Self is like that. It's immersed in the deep love, full of divinity, full of vibration, full of truthfulness है वहाँ self में. जहाँ प्रेम है, जहाँ आनंद है, जहाँ उत्सव है, उसको सेल्फ कहेंगे. तो 18 साल की जर्नी में पहले जब बोलते थे कि आत्मा का क्या स्वरूप है, सच्चित आनंद है, तो सच्चित आनंद ऐसे ये सब बातें लगती थी. पर जब आप सच में अपने आप को समझना शुरू करते हो, तो तब सच में समझ में आता है कि सेल्फ, वाओ, सच्चित आनंद हैज बीन गिफ्टेड बाय गॉड. और तुम बाहर ढूंढ रहे हो, कभी व्यक्ति में ढूंढ रहे हो, कभी परिस्थिति में ढूंढ रहे हो, कभी ऑब्जेक्ट में ढूंढ रहे हो, वस्तु में ढूंढ रहे हो. सो सब अपने अंदर ही. So how spirituality clicked to you?
because now it says 18 years of self-realization journey, right? जी But something happens in our life, some accident, could be a mishap or could be some good happening as well. Something clicks to you. Yes, this is now, me, myself, not just the body, not just, when you're talking about the Advaita philosophy, not just the body, not just the mind, not just the intellect, not just the heart emotions, everything, niti, 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 isn't it? So when you arrive at this, so-called Satchitanand, definitely will explore that. So when did it click to you? Were you going through some kind of a trauma, some good yeah thing? so How? Yeah, yeah. see my spiritual journey started from the my first guru was my mother, you know. Okay. सो वहां से जर्नी शुरू हुई बट इतने छोटे थे तो ये पता नहीं था कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है सो Mhm. जैसे जैसे आप when you're growing up you're going to higher level of schools and then you're moving to the college and then you are understanding the different friendship level and when you're somebody is hurting you and then your heart is your best friend I'm talking about the girl best friend not the boy best friend so the first realization happened when she I will not name it over here. The first realization was when she was giving more importance to someone and she was Mhm. giving less importance to me, you know. So I said, why this is happening? I am so totally dedicated to her. Why she's giving to importance to that person? Why that person is so important? So all these things, and then my pet dog died in accident. You know, that was also the major incident in my life. I'm very close to nature. I love nature. I love all the animals, specifically dogs. I have three stray dogs. I feed them every day. I look after their medical Wow. needs also. And so small incidents happened in this when I was in school. Then I went to the college. So these small incidents were whenever I used to get hurt, I used to write a letter to God. You know, from Wow, class fifth. interesting. Yeah, Okay. so from class fifth, I'm writing a letter to God. Whenever I'm upset, even now also, if I'm upset, I write a huge, the long letter, you know, all, all the. Maybe Madhu, you can compile all those letters and you can have another book. You can publish a book. तो मुझे किसी से कुछ गुस्सा है, कोई परेशानी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी, और यहाँ मैं बहुत खुश हूँ. उल्टा भी है. इफ आई एम वेरी हैप्पी व्हेन आई गॉट माय ईटी इंस्पायरिंग इकोनॉमिक्स एंड लीडरशिप अवार्ड आई वाज वेरी हैप्पी. अभी अभी ब्रह्म कुमारीज ने मुझे दिया तो जो उत्तरा दीदी से मिला, शी वाज वेरी सीनियर Yeah. दीदी इन ब्रह्म कुमारीज. ऐसा लगा जैसे मैं अपनी माँ को ही मिल रही हूँ. तो जब Mhm. ऐसी खुशी होती है तो भी मैं वो कृतज्ञता का जो है आई राइट एंड आई एम वेरी रेगुलर इन माय ग्रैटिट्यूड जर्नल. I'm very, Wow. very regular in my gratitude journal. Like I said that I'm coming back from Shimla. So I've written in my whole homework is complete related with God, you know. I'm very Wow. disciplined in that. Okay. So, So that, brings me to the another consequent question, that is, see, I know you sit at ISB also and very close to corporate. You are delivering workshops for the corporate leaders on mindfulness and all, right? see. You are a fantastic photographer and all that. Wow. I mean, different, walks of life, multi-talented. So, if I may ask you, what your this organization or the startup, Yeah. what is the approach, what is the framework, how it deals with the seeker in sense, the participants, yeah, See. those who approach you, because see, people would be coming from different walks, I mean, different paths of even spiritual journey. Somebody See. is coming from Gyan Yoga, somebody is coming from Bhakti, somebody is coming from lot of knowledge, you see. So all See. those, cynical mind and very scientific kind bent of mind. So how you deal with different kinds of people, what framework your organization has, and how you enable them to find their whatever expected, that thing, Yeah. happiness So or let peace, me whatever. complete the first questions because Sure. that was incomplete. Sorry. So Yeah. my formal spiritual journey then started in 2006, Oh. right? And so from 2000, I'm very
regular in my personal sadhana. Now, what is sadhana? Sadhana, which includes the breath work, pranayam, certain kriyas, meditations, and my puja, which I do. Pujas are very personal, like it's entirely up to your taste that how do you want to worship God. So 2006 से जर्नी शुरू हुई और वो 2006 से जब जर्नी शुरू हुई तो फिर समझ में आया बीइंग अ फोटोग्राफर अगर आप मेरा कॉन्सेप्चुअल आर्टवर्क देखेंगे एक तो पीछे ही लगा है, देखिए 28 वाह, फेज ऑफ द क्या मून. मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे वो सिमेट्रिकल लग रहा है बस। दिस इज अ मास्टरपीस ऑफ माय Okay. आर्टवर्क. सो फिर मुझे लगा कि फोटोग्राफी से किक मिलनी बहुत कम हो रही थी. तो हमने फोटोग्राफी क्लब्स वेरियस स्कूल्स में लॉन्च किए और उसके साथ साथ मेरी जो साधना थी वो बहुत रिग्रेस हो रही थी. देन वन ऑफ माय फैमिली मेंबर ओनली सेड दैट, माय नेफ्यू सेड दैट, व्हाई डोंट यू, बुआ यू आर सो गुड इन yoga and meditation, why don't you do something in that? Then when I was searching the life coaches profile, and those life coaches were very very well educated, I said अरे मुझे तो कोई कॉर्पोरेट में पूछेगा भी नहीं कौन आ गया ये साधु ना जो अंदर से साधु है पर बाहर आप उनको स्पिरिचुअलिटी तो डायरेक्टली बेच नहीं सकते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, है ना. Correct, correct. वन हैज टू बी They वेरी, are hard nuts to crack, with due respect. या सो उनको आप क्या बोल सकते हो, एनहांसमेंट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, ये भी आपके प्रश्न का उत्तर है. हाउ टू टेक केयर ऑफ योर बर्न आउट, हाउ टू वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो दीज थिंग्स आई कवर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. एंड फिर इनर वेलनेस, जब मैंने लाइफ कोचेस का प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा कि अरे मुझे तो कॉर्पोरेट में जाना, तो एमबीए इज द बेसिक क्वालिफिकेशन, यू नो, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम. देन आई डिड MBA in HR from Narsi Monji, and besides that, then I did spiritual life coach, cognitive behavior, and recently I just finished 2 days ago the From happiness Harvard. program, managing happiness from Harvard. And Wow. so मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं. जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डील कर रहे हो तो मुझे लगता है कि कोई एस्पेक्ट ऐसे खाली ना रह जाए. तो आज से 5.5 साल पहले तो इनर वेलनेस की हमने स्थापना की. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे एकता जी, किरण जी, जो भी हम इनर वेलनेस में कर रहे हैं, इवन ये जो नाम भी है ये साधना से ही आया है. व्हेन आई मेडिटेट the name pop up, you know, so this should be the name of the organization. So inner wellness. Then where Sanjay Tandon is my student, you know, जो बीजेपी के वो है, he's my student. So he said that you कि तुम कंपनी को क्यों प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारा तो नाम ही बहुत है मधु, बिकॉज आई एम वेरी फेमस इन योगा एंड हायर लेवल ऑफ मेडिटेशन. तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो कंपनी, फिर मुझे लगा कि कंपनी कर दी, तो फिर मैंने लिखा इनर वेलनेस बाय मधु, सो दैट टू ब्रांड्स आर मर्जिंग विद ईच अदर. Yeah. सो इनर वेलनेस फिर क्या किया, तो हम जब मार्केटिंग को देखते हैं या संसार के डिफरेंट सेगमेंट को देखते हैं, तो संसार के डिफरेंट सेगमेंट पे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एक गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का वर्ल्ड है, एक एनजीओ है जैसे एकता जी कर रही है ना, फिर एक इंस्टीट्यूट्स है, फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन है, फिर लॉयर्स की एसोसिएशन है ना, फिर जजेस है. तो मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ, तो मुझे लगा कि जीवन में ये जितने पहलू हैं, इन सभी पहलुओं पे मुझे काम करना है, ताकि कोई भी पहलू ये ना कहे, कॉर्पोरेट वाले ना कहें कि जी आपने तो गवर्नमेंट में काम नहीं किया, और गवर्नमेंट वाले ये ना कहें आपने तो एनजीओ में काम नहीं किया. तो मैंने कुछ भी हाँ. छोड़ा नहीं इनर वेलनेस में. अगर आप Okay. इनर वेलनेस का प्रोफाइल देखेंगे तो हमने एक एक सेगमेंट के साथ बहुत दिल से काम किया है. और जब आप एक सेगमेंट की बात कर रहे थे, आपने बोला कि हाउ डू यू हैंडल डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड्स. हाँ, लेट different मी टेल secrets. यू द Yes. सीक्रेट, लेट मी टेल यू द सीक्रेट. Mhm. तो हम सबका माइंड Yeah. ना एक ही जैसा चलता है, उसमें 2-3 कॉन्फ्लिक्ट्स ही हाँ. होते हैं. पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है. Okay. फिर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि फाइनेंशियल सेटलमेंट, यू नो, कि पैसे ज्यादा कमाने हैं या पैसे कैसे बचाए जाएं, है ना. और तीसरा हो सकता है अपनी हेल्थ को लेकर. तो ह्यूमन माइंड एक जैसा ही चलता है.
कोई ज्यादा फर्क नहीं है। किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो किसी को रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहिए, और किसी को हेल्थ में स्टेबिलिटी चाहिए। ऑफ कोर्स इन हेल्थ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइंड एंड इमोशंस आल्सो। सो बिल्कुल। ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी ने सिखाया, और मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने सिखाया कि ये 3 तरह की मेजर समस्या रहती है। तो इसी हम्म, पे ही लोग आ के बात करते हैं, है ना? तो हम्म, पर इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है, हम में हम सब में, जो भी यहाँ लोग हैं या जो हमें बाद में भी सुनेंगे, हम सब हम्म, में हम सब में जोड़ने के लिए एक ही माध्यम है। वो क्या है? हमारी आत्मा। हम आत्मा से सभी एक है। उसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं है। देयर कुछ इज नो फर्क नहीं, पार्शियलिटी। oneness, you are या saying that is the common denominator, that's our true या self. या इफ गॉड इज पार्शियल, मुझे थोड़ा गोरा बनाया या मेरे बाल लंबे किए, है ना? अगर आप कहो कि भगवान ने आकृति में वो किया, अलग अलग किया, बिकॉज गॉड लव्स वेराइटी, यू नो। ही हैज इंट्रोड्यूस अस लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेदर, है ना? पर हम्म, आत्मा के स्तर पर हम सबको एक जैसा रखा। सबकी आत्मा एक जैसी है। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या होता है ना अभी मधु जी, मैंने देखा है कि एट सर्टेन एज वी ऑल हैव सर्टेन काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इनसिक्योरिटीज, इन्फिनिटी। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, अभी तो लाइट का फोकस आ रहा तो मैं थोड़ा सा उजला दिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं काफी सांवला हूँ। तो मैंने बहुत फेयर एंड लवली लगाई स्कूल में, स्कूल कॉलेज में बहुत फेयर एंड लवली लगाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सो बट थैंक गॉड, मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे, आई एम ए सन ऑफ आर्मी पर्सन। तो उन्होंने कहा कि देखो फीचर्स जो है ये तो आपने हमसे लिए और हमने अपने पेरेंट्स से लिए वगैरह वगैरह, तो ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। व्हाट इज इन कंट्रोल इज योर दैट अनदर एफ, दैट इज योर फिटनेस। तो आप फिटनेस पे काम करो। फिर धीरे 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 वो सब चीजें ना समझ में आने लगी। तो मेरा सवाल इसी से मिलता जुलता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स, even people like us, those who are into late 40s or maybe 50s, हम्म। those people who are not into kind of spirituality, या उनको ये झलक नहीं मिली है अद्वैत की या साक्षी भाव की, जो हम्म। भी आप कह रहे हो सच्चिदानंद की, तो वो अपनी यात्रा को कैसे मेजर करें? हाउ दे कैन मेजर द प्रोग्रेस कि भाई हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग देखते हैं, मैं बहुत सी चीजें पूछ रहा हूँ, आप उसको सुन के आप अपने हिसाब से बता दो। कई जी। बार देखते हैं ना कि देयर इज लॉट ऑफ स्पिरिचुअल शॉपिंग, या and we know that it's a business. So many time the innocents get misled, and then they later, oh हो मैं तो 2-3 साल 5 साल ये फलाने फलाने में कम्यून में था और पता नहीं मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें, एंड इट्स काइंड ऑफ अ कंपटीशन। सो अगेन टू reiterate the question, how this really innocent youth should measure the progress of his or her spiritual journey based on your experiences? राइट, जो बहुत सुंदर प्रश्न है। सो मैं सबसे पहले तो मेरा स्पिरिचुअलिटी खुद से शुरू होती है। सबसे पहले अगर आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, सेल्फ लव जिसको कहेंगे, सेल्फ लव डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू पार्लर, यू आर हैविंग मैनिक्योर और पेडिक्योर और स्पा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर ईटिंग ऑन टाइम एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, खाना हो गया, और एकता जी ने कहा कि 70% शरीर में पानी है। So how much water you're taking? You're sitting in front of the laptop, मैं ये मेल भेज दूं, मैं ये प्रोजेक्ट कर लूं, उसके बाद पानी पीऊंगा या पीऊंगी। So spirituality सिर्फ मैं ये कहूंगी कि spirituality is totally related with you। आपके फिजिकल, आप फिजिकली, because the body is your temple, how you're taking care of your temple, you know, that is the first gift you can give it Hmm. to the nature, you know. Because we are made up of 5 elements, एकता जी ने इंट्रोडक्शन में भी कहा। तो शरीर को कैसे Hmm. देखते हैं? फिर Hmm. मन, मन में अगर बहुत विचार आ रहे हैं तो मन के लिए हम क्या कर रहे हैं? और फिर भावनाएं, Hmm. अगर Hmm. 2 तरह की भावनाएं हम सब जानते हैं, द नेगेटिव इमोशंस एंड द पॉजिटिव इमोशंस। इफ द माइंड इज अगेन एंड अगेन कैचिंग द नेगेटिव इमोशन, what steps you are doing it, you know. This is how Hmm. the spirituality is starting, you know, how you're taking care of your body, how you're taking care of your mind, your emotions. And then the most important part, after looking after yourself, how you're behaving in front of your parents and Yeah. grandparents. True. Everything boils down to the behavior, या isn't it? दिस Yeah. इज यू नो, आपको कोई पूजा करने से या योग साधना करने से स्पिरिचुअल नहीं हो जाओगे अगर आपका बिहेवियर Hmm. ही ठीक नहीं है। सो सबसे पहले जो पहला रूल है स्पिरिचुअलिटी का, यू शुड लुक आफ्टर योर सेल्फ।
then you should give back to your parents and your grandparents or friends. That is spirituality. आप Oh, वैसे बाहर बाहर wow. वालों के लिए बहुत गुडी गुडी हो, यस सर, यस मैम, हो जाएगा, डन मैम, ओके मैम, और घर आके आप माता पिता से अच्छे से बात नहीं कर रहे, दादा दादी सही की बात। रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं हुई। स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है करेक्ट, आपके दैट इज अ खुद मास्क। से, क्या, खुद से, और हाउ बहुत यू सही, बहुत बिहेव सही। एट होम, हाउ यू आर बिहेविंग विद योर टीचर्स, प्रोफेसर्स, योर मेंटर्स। फिर आती है, अगर आपका कंडक्ट यहाँ पर सब ठीक है ना, आपको पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं हाउ मच लव यू हैव गिवन। आपने वाओ, कितना प्रेम दिया और कितना ज्ञान बांटा, ये दो चीजें भगवान की कैटेगरी की। राइट, कितना प्रेम राइट। स्वयं से किया, कितना प्रेम दूसरों को दिया, ये स्पिरिचुअलिटी है। Like, okay. So keeping that, the title in mind, holistic lifestyle, and my question that, how I can measure the progress. So since you are MBA, I'm MBA, तो उसमें एक कोई होता है ना HR में, KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, है ना? तो अगर मैं बॉडी की बात करूं, इस डायमेंशन की बात करूं, तो हम सबको ये ध्यान में रखना है कि यार मैं सही खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं, मतलब मेरी बॉडी, am I feeling energetic when I wake up early in the morning? I'm not feeling lousy, and जितना भी मैं डिटॉक्स कर सकता हूँ करूँ, तो दैट इज आई थिंक। और अगर साल में 1-2 बार अगर मैं मेडिकल रिपोर्ट्स करूँ, एनुअल चेकअप करूँ, तो साफ सुथरे आनी चाहिए। आई थिंक दैट इज द साइन ऑफ अ हेल्थी बॉडी। आई शुड टेक एडिकेट रेस्ट, ईट गुड, सात्विक रात्विक, व्हाटएवर, आई थिंक यू नो बेटर देन मी, या। तो वो है मेंटल लेवल पे आप ये कहना चाह रहे हो, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूँ, सो दैट बिकॉज दिस रिकॉर्डिंग विल बी हर्ड बाय सो मेनी पीपल। So mental level पे you are saying that, because we are in a world of so much of, distraction, overthinking, social media. So can we have that kind of ability to remain focused at certain point with peace of mind, and which is why we can behave good with people, behavior. I think Right. these 2-3 things, these are the signs of our progress, right? परफेक्ट, परफेक्ट, या। एंड Okay. मन के बारे में एक चीज और ऐड कर देती हूँ कि Mhm. हम सबको आदत है ना, क्योंकि सोशल मीडिया अभी नीड बन गई है। अब जी। मुझे बहुत अजीब लगता था कि आप अपना काम करो तो लिंक्डइन पे डालो, अपना काम करो तो इंस्टा पे डालो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट व्हाट टू मैंने डू। देखा आपका, हाँ, आप ज्यादा एक्टिव नहीं हो, देखा मैंने। हाँ, मतलब मैं फेसबुक पे तो जाती ही नहीं, मुझे समय नहीं है मेरे पास। तो लिंक्डइन पे इसलिए बिकॉज द एवरी कॉर्पोरेट इज इन इन लिंक्डइन। एनीवेज, तो मैं ये कहना चाहूंगी एक इससे रिलेटेड यूथ के लिए और इवन सबके लिए, कि आप हम सबको अपना समय बांधना चाहिए कि मुझे इतना ही समय सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करना है। इफ आई एम इन्वेस्टिंग मोर देन दैट, देन यू नो मतलब अपने आप को, उसके जो ड्यूरेशन ऑफ द आवर्स है उसको थोड़ा कम करना चाहिए हम सबको, फॉर आवर मेंटल हेल्थ। बिकॉज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, जितना टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हो रहा है, उतना हम नेचर से दूर है, और जितना नेचर से दूर है मतलब भगवान से दूर है, बस मैं तो ये कहूंगी। सो Wow, that is एवरीबडी, really good. या एवरीबडी शुड गो फॉर 20 मिनट्स की वॉक पे जाएं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर हमने मन के विचारों को कम करना है, तो फिजिकल एक्सरसाइज इज द की फॉर दैट। This is really very insightful. This is an या, eye opener, and I think हाँ, people should make a note of this कि अगर ओवर थिंकिंग है तो बस कुछ नहीं, आप सब छोड़ दो, आप अपने आप को फिजिकली एंगेज करो, वो आपके जो विचार की जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। इनफैक्ट आई और पर्सनली प्रैक्टिस दैट। बिल्कुल, जो भी अच्छा लगता है आपको, वॉक अच्छी लगती है, जॉगिंग अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, स्विमिंग, एनी एक्टिविटी विच यू लव, everybody should do it, even after 50 60, जो भी आपकी एज है, एज इज नो बार। क्योंकि जितना हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ही मतलब हम हमारे हेल्थ के पैरामीटर्स बेटर रहेंगे। इवन मेंटल मेंटल हेल्थ भी, बिल्कुल। फिजिकल फिजिकली जब हम एक्टिव रहते हैं तो मन के बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर मेंटल वेलबींग। आप देखिए दैट्स ना, रियली रियली इंसाइटफुल। सारा ब्रेथ वर्क और जो क्रियाएं हैं
अगर हम ब्रेथ वर्क और क्रियाओं को समझेंगे तो वो एक दौड़ने के समान है। कोई भी सांस की क्रिया अगर हम करते हैं, जैसे योगिक सांस है तो लंबी गहरी सांस ली, और जो फास्ट ब्रीदिंग है दैट इज इक्वलेंट टू रनिंग, फॉर एग्जांपल if I'm क्या होता breathing है? fast, it means my body is sitting but my brain is thinking that I'm running. हाँ सो हाँ, सांस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है योग में। और मतलब जो लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मैं तो कहती हूँ अपनी डेस्क पे बैठ के पैर हिला लें और सांसें जोर जोर से ले लें या स्लो ले लें। कुछ कुछ तो करें। डेस्कटॉप योगा हम सिखा। मूवमेंट इज लाइफ। आप ये कहना चाह रहे मूवमेंट इज लाइफ कि भाई हिलो डुलो कुछ तो करो, है ना? हाँ, और मन की हलचल खत्म करने हाँ, तभी फिजिकल मूवमेंट। होगी जब हम फिजिकली मूव करेंगे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत सही बताया आपने। अच्छा, व्हाट आर योर पर्सनल प्रैक्टिसेस मधु जी? क्योंकि एवरीवन हैज इवन अगर मेडिटेशन की बात करें तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है। अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक्स है, अलग अलग आश्रम में अलग अलग स्पिरिचुअल गुरुज ने अलग अलग चीजें सिखाई हैं। जैसे विपश्यना है, मैं खुद 3 दशक से विपश्यना करता हूँ। मैं बेटा हाफ इज ऑल्सो इनटू इट। कई और मेडिटेशन टेक्निक्स है, राइट? तो आपके क्या प्रैक्टिसेस है? सो मैं सबसे पहले तो ब्रीदिंग करती हूँ, 5 या 6 तरह की ब्रीदिंग है। देन आई डू ऑल द प्राणायाम्स लाइक कपाल भाती, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओके। and Brahmari pranayam. All these pranayam I do. Bhastrika pranayam. These 4 pranayams I do. And then I do certain kriya. And then I meditate. So meditation एक है guided meditation कि मैं जैसे कोई भी बोल रहा है और आप ध्यान कर रहे हो। पर अब क्योंकि मुझे 18 साल हो गए तो मैं गाइडेड मेडिटेशन कभी कभी करती हूँ, जब मेरा बहुत मन होता है तब करती हूँ। अदरवाइज आई डू transcendental meditation, which we call it. पीएम Yeah, so महेश योगी का विश्व में। according to the requirement of my mind, sometime I do, the transformation meditation, which is transforming my emotions, energy. So depending upon the requirement, तो ज्यादातर ध्यान ध्यान क्या है कि आपने letting go of the physical self, letting go of the mind, the thoughts, the feelings. When you let go, basically you are having a date within your own self, you're dating the soul. That is meditation. जब आप अपने शरीर हाँ, और मन को भूल गए, वो ध्यान है। सिंपल। क्या बात है। आप ये कैसे कन्विंस कीजिएगा? आप नाउ विजुअलाइज, इमेजिन अ केस दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल दोस एमबीए ग्रेड्स फ्रॉम या सर्टेन प्रीमियम बिजनेस स्कूल एंड दे आर हैविंग अ प्रेशर ऑफ प्लेसमेंट्स। और वहां पे जाके आपको टॉपिक दे दिया गया कि मधु जी आपको 1 घंटा दिया गया है, आपको इन बच्चों को बताना है, इन स्टूडेंट्स को बताना है, फ्यूचर लीडर्स को, कि मेडिटेशन और अध्यात्म के क्या फायदे हैं। फायदे तो हम सबको पता है, कैसे कन्विंस कीजिएगा आप इन लोगों को? मैं तो सबसे पहले बोलूंगी कि वुड यू लाइक टू लुक स्मार्ट, है ना? तो सुंदर दिखना चाहते हो, या फिजिकल लेवल से शुरू करेंगे। फिर मैं क्या बात। बोलूंगी कि वुड यू लाइक टू बी अट्रैक्टिव, कि गर्ल्स आपसे अट्रैक्टिव हो, और गर्ल्स को कहूंगी कि बॉयज आपसे अट्रैक्टिव हो। और वुड यू राइट। लाइक टू हैव शार्पनेस ऑफ माइंड, तो ये सारी चीजें रहेंगी। एंड वुड यू लाइक टू बी फाइनेंशियली साउंड, एंड फाइनेंशियली साउंड होने के लिए कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां भी आप काम करेंगे, जिस भी जॉब में आप जाएंगे, कंसंट्रेशन इज द की, डिसिप्लिन इज द की। एंड हाउ टू लाइक गेन मोर कंसंट्रेशन, हाउ टू बी मोर डिसिप्लिन, द योगा के पहले कंपोनेंट ही कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन है। मधु जी, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली। नो, स्पिरिचुअलिज्म जो है या स्पिरिचुअल यात्रा जो है, उसके अंदर में जब ये फाइनेंशियल वाली जो आपने बात बोली ना, कई लोगों को ये लगता है दोज हु आर वॉकिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उनको पैसे से कोई लेना देना नहीं। फकीर बन जाओ, सोकल्ड साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, छोड़ दो दुनिया, चले जाओ। हम्म। कई मैंने लोगों को देखा हुआ है, नो आई डोंट वांट टू गेट इनटू या दिस। या उन्होंने उन्होंने अपनी जो निजी जिंदगी है, अपनी जो मैरिड लाइफ है, वहां से उन्होंने पलायन कर दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, पता नहीं कहीं चले गए। लेकिन आपने बोला नहीं, कि स्पिरिचुअलिटी में यू यू कैन बिकम रियली फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन। तो या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो मैं अब हम एग्जाम्पल
की बात करते हैं, आप अगर आप सिखों के पहले गुरु की बात करेंगे, गुरु नानक देव जी, ही वॉज मैरिड। वो अपनी अपनी गृहस्थी को भी जी रहे थे और साथ साथ ट्रेवल भी कर रहे थे। तो हम्म, ये सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है, 400 साल पुराना, कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो जी, ऐसा तो है नहीं कि तुम स्पिरिचुअलिटी में हो तो अपनी फैमिली छोड़ दो। और भगवान कृष्ण की अगर हम बात करें तो वो तो हम्म, कर्म कर्म को ही सबसे इम्पोर्टेंस दिया है उन्होंने। तो बिल्कुल, कर्म से कैसे भाग सकते हो आप? बिल्कुल राइट, नहीं भागना। और दूसरी बात रही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, हम्म, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द हम्म, सेम टाइम पैसा जरूर कमाना चाहिए, बट हम्म, हर वक्त आप पैसे को मन में मत रखिए। हाँ, you should not become money minded. You should earn good money and you should be able to utilize या the money in right way, right. पैसा बोलना नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं ना, मतलब हम्म, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर पॉकेट, नॉट द पार्ट ऑफ योर हेड। आपके wow, पैसा जेब तक रहे, ऊपर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये सही सही या सही, बहुत सही। देखो या ना, ये एक्चुअली सत्संग है। ये एकता ने ये रखा हुआ है, ये बट एक्चुअली सत्संग हो रहा है। पता नहीं हम लोग कितना सीखेंगे, लेकिन मैं तो इतना सीख रहा हूँ आपसे। रियली आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड, रियली गुड। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक और बात मुझे पूछनी थी कि नाउ यू हैव अ सन हु इज डूइंग सो वेल। he did law and now he's working with such an established organization, जी। right? I am also blessed with a son and he's into game designing. But at times, now this is the personal guidance I seek हम्म, from you, and maybe there are people who are having, a single child राइट case, राइट। especially boys. Girls, we understand, they are very sincere, they are very caring, right? But boys, not all are the same. Some of the boys, sometimes, they throw their tantrums, and they become little of, a stubborn kind. So, हम्म। kaise what is your mantra? How to deal with single child, सो अगर तो हम 7th 8th वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, तो दो तरह के Mhm. बच्चों की एग्जांपल दूंगी। अगर तो घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, जॉइंट फैमिली है, तो देखिए ग्रैंड जी, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों की लाइफ में, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर, दे गिव सो मच लव टू चिल्ड्रन। सो मेरी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे इन लॉज और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा। सो यहाँ पर मेरी बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि परिवार का और शास्त्रों का जो संस्कार है वो ग्रैंड पेरेंट्स जितना खूबसूरती से दे सकते हैं वो हम भी नहीं दे सकते, नंबर 1। नाउ लेट्स yeah. टॉक अबाउट द एडोलेसेंस जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। maybe it's a single हाँ, family, मैं like पूछने वाला था, they हाँ, are हाँ, meeting the grandparents on and off but they are living with their parents। हम्म, दिस एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। सो वहां पर क्या है कि अगर बच्चे जिद्दी हो रहे हैं तो पहली बात हमें, जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें ना, जो पेरेंट्स का वो जो चोला डाला है ना हमने, वो पेरेंट्स का चोला उतार के हमें फ्रेंडशिप का चोला डालना पड़ेगा। right, यू हैव टू बी okay, फ्रेंड विद योर चिल्ड्रन। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, आई एम द मोस्ट wanted person in my family because I always I become like a child if I'm with my niece and nephews। uh, वो बुलाते चाहे मुझे बुआ है या मासी है, लेकिन वो बातें वही सब करते हैं जो अब वो अपने दोस्तों के साथ करते हैं। तो पहली हम्म, बात, आप जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट करने लगे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनके साथ फ्रेंडशिप बनाए। जी, जी, और एक और स्किल बताती हूँ कि उनके जो हम्म, दोस्त आ रहे हैं उनके हम्म, साथ और गहरे दोस्त बन जाओ आप। जब okay, उनके दोस्त आपको पसंद करने लगेंगे, जब उनके हम्म, दोस्त कहेंगे कि यार तेरे पापा तो बड़े कूल है यार, तेरी मम्मी तो बड़ी कूल है यार, तो ये दिस इज बिग क्लैपिंग यार, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगा। तो वो कहते तो ना, दोस्त का दोस्त दोस्त। हाँ, तो जब जब वो आपके मतलब आपके बच्चों के दोस्त आपकी प्रेस कर रहे हैं, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस गेन करेंगे कि यार जो इमेज मैंने मम्मी पापा की बना के रखी है इतने बुरे भी नहीं है। इफ माई फ्रेंड्स आर लाइकिंग देम, True, दे विल true, कम बैक टू यू। आएंगे वो, आज नहीं तो कल आएंगे।
तो बच्चों के साथ फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हमें रूड नहीं होना, हमें आवाज नहीं ऊंची करनी, बट हम फर्म हो सकते हैं कि मान लो वो कुछ भी नाजायज डिमांड कर रहे हैं, मान लो आईफोन 15 डिमांड कर रहे हैं और हाँ आपके बजट में नहीं है, तो आपको लॉजिकली बताना पड़ेगा। हम क्या है कि उन उन चीजों को इमोशनली बताने लगते हैं, तो इमोशनली नहीं, उनको लॉजिकली, यानी लेफ्ट ब्रेन से आंसर देना है, राइट ब्रेन से कब देना है ये देखना पड़ेगा, लेफ्ट ब्रेन से कब देना है तब देगा उनको। अच्छा, ये दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या जो आप तो कह रहे हो, आप बिकॉज यू बिल्कुल कैन बी इवन कूल काम कंपोस्ट। एब्सोल्युटली लॉजिकली आंसर दो कि मैं आईफोन 15 क्यों नहीं लेके दे रहा, दीज आर द रीजंस। एंड एक चीज और इसमें ऐड कर देती हूँ कि लोगों को जैसे डाउट होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ तो शक होता है जी, हाँ ਅਸੀਂ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ तक जवाब नहीं देता। सो लोग अज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि इसने जानबूझ के 6 बजे तक मुझे जवाब नहीं दिया, ये हमेशा ऐसे ही करता है या करती है। मैं कहती हूँ जब मन में शंका आ रही है तो भगवान ने आपको फैक्चुअल बुद्धि भी दी है ना, उस व्यक्ति से पूछ लो बड़े प्यार से स्किलफुली कि यार हमने 4 बजे मेल की थी, सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज सही। ओके। तुम तो ब्लेम गेम पे ही उतर जाते, मैंने तो 4 बजे की थी यार, तू हमेशा ही ऐसे करता है, तू तेरा फोन भी कभी तू उत्तर नहीं देता है, मैंने 4 बार फोन किया, तूने एक बार ही जवाब नहीं दिया। तो फैक्चुअली पूछ लो उस व्यक्ति से कि व्हाट इज द रीजन, एवरीथिंग इज ओके, आई वाज बिट कंसर्न कि आपने क्यों नहीं जवाब दिया। तो वो व्यक्ति बहुत ईगरनेस से आपको उत्तर देगा कि यार ये रीजन था इसलिए नहीं। तो बच्चों पे भी कभी शंका आए तो उससे बड़े प्यार से लॉजिकली पूछ लेना चाहिए कि बेटा मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क। दिस इज द वे वी शुड टॉक टू देम एक्चुअली, नॉट बहुत सही। बीइंग अ बॉस कि मैं पापा हूं तो मैं ऐसे ही पूछूंगा, नहीं। नहीं, वो हो जाता है ना। अच्छा, इसमें ना एक एग्जांपल मेरे जहन में आ रहा है, मेरी पर्सनल प्रैक्टिस। वो ये था कि कई बार जो हम लोग ना एक माइंडसेट में रहते हैं, कंडीशन लाइफ में रहते हैं, एक्सपेक्टेशन वही वाली आदत होती है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपने कहा ना कि आपने मेल करा, फिर बाद में 4 बजे 6 बजे तक जवाब नहीं आया, तो देन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग। वो सारी चीजें, राइट, पाइलअप होती है, कंप्लेंट बन जाता है, फिर एगोनाइजिंग स्टेट में चले जाते हो। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि I worked with people and I led so many good teams, right, from I think more than 20 years. तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ अगर मेल डाला हुआ है, तो मुझे लगता था कि यार लोगों ने उसको एक्नॉलेज तो करो, और मैं भी खुद टू लीड बाय एन एग्जांपल वाली बात हो जाती। तो आई यूज्ड टू से आई थैंकफुली एक्नॉलेज योर मेल वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो वो था। अब वो चीज जब व्हाट्सएप में शिफ्ट हो गई, तो जब मैं किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करता था यार कि यार कम से कम थम्स अप तो कर दे। कोई जरूरत नहीं कि उसके बारे में कुछ कमेंट करे या कोई बहुत ज्यादा तारीफ करे, लेकिन थम्स अप तो करे कि इन्फॉर्मेशन आ जाए। फिर मैंने सोचा, मैंने 10-15 दिन सोचा कि यार बंदा थम्स अप क्यों नहीं कर रहा है। फिर मैंने देखा नहीं, ब्लू टिक तो आ रहा है, ब्लू टिक तो आ रहा है, मतलब पढ़ रहा है राइट, बंदा। दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स। मैंने कहा सही है, बिकॉज दिस पर्सन हैज ए स्टाइल ऑफ रीडिंग बट ही मे नॉट बी डूइंग दैट, so it राइट, is wrong on my part to expect too much. You can't expect the way you want to treat people, but treat them the way they want. ऐसा राइट, I राइट। thought, let me share this I'll just example. take 1 second. Yeah. एकता, कितना टाइम है अपने पास अभी? मेरे ख्याल से हो गया टाइम अभी, 6:47 हो गए। Yeah, जी so सी, ये डिस्कशंस ऐसी है ना जिसे वी कैन स्पेंड We द keep होल on लाइफ going, विद yeah. दिस डिस्कशन, True. बट यस वी हैव टू स्टिक टू द टाइम आल्सो। yeah, सो हाउस द कन्वर्सेशन, पहले ये बताइए आप कैसा लगा सबको आज बातचीत करके। मुझे तो बहुत अच्छा मुझे लगा, भी मुझे बहुत सीखने को अच्छा मिल रहा लगा। है। मैं तो बच्चा हूँ, आपको पता है, मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ। तो मैंने जब दोपहर में भी जब मैंने बात करी मधु जी से, तो मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी तो लाइक सो मेनी आई ओपनर्स कमिंग, एंड इनफैक्ट आई एम मेकिंग अ नोट ऑफ दिस इसके बाद में। सो वेरी गुड। जैसे एक वाला पॉइंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप उनके दोस्त के बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ। अच्छे। हाँ। तो एकता जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्वेश्चंस आपको बेटर लग रहे हैं आप उसका 1 1 मिनट का वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं। क्योंकि हाँ जी, इतना हाँ लंबा। जी, जी मधु जी।
हाँ, इतना लंबा वीडियो जो है वो पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए भी इतना समय निकालना। तो जी डेफिनेटली इसमें से इट विल टेक टाइम। मैं आपसे ये कमिटमेंट नहीं करूंगी कि हम हफ्ते में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। इट विल टेक टाइम, बट ये हम उसको सिंसियरली टाइमिंग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें इसकी शॉर्ट्स चाहिए, एंड देन वी विल शेयर विद और विद आवर ऑडियंस सो दैट दे कैन हैव दैट बेनिफिट. So, it's a really a very wonderful conversation. तो मैं कुछ पॉइंट्स पे आपके साथ बात करना चाहूंगी. जैसे हमारी शुरुआत हुई थी ईगो एंड ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट. तो यस, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ईगो कैन नेवर बी सेटिस्फाइड. उस केस में तो किसी एक पर्सन को हमेशा शांत रहना होगा और दूसरे की ईगो सेटिस्फाई करना होगा, एंड विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. या सो ego conflict is really dangerous for every relationship, but yes, opinions can be resolved. So उत्सव, आपने उत्सव की बात की. I truly believe कि अगर मन में उत्सव तो हर पल उत्सव, नहीं तो बड़े से बड़ा उत्सव भी एक बेजान है. वाह तो जी वाह। उसमें हम कहते हैं ना कि नहीं आज मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, तो चाहे हम कितनी भी बड़ी पार्टी में चले जाएं, कितनी भी बड़े एंजॉयमेंट में चले जाएं, या हमें कुछ पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, या ऐसे ही हम उदास हैं, तो हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हमें वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. सो उत्सव, हर पल उत्सव, मन में उत्सव, इसी सोच के साथ हमें चलना चाहिए. जैसे अभी हम लोग वाटर की बात कर रहे थे कि एवरी डे इज अ वाटर डे, क्योंकि एवरी मिनट हमें वाटर चाहिए. हम लोग, वी आर मेड ऑफ वाटर, अर्थ इज ऑल्सो मेड ऑफ वाटर. सो हर पल उत्सव. जो फिर आपने बात की फिजिकल फिजिकल मूवमेंट. यस, क्योंकि मुझे याद आ रहा था कि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि बच्चा अपने हाथ पैर हिलाए और रोए. अगर वो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, तो आई थिंक कहा भी जाता है ना कि सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होती है जब बच्चा रोता है तो माँ को बहुत खुशी होती है, और वो होता है जब जन्म के बाद बच्चा रोता है. तो ये शायद कुदरत ने ही हमें ऐसा बनाया है कि अगर हम हिलेंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है. रोना, कहते हैं ना कि रोना नहीं नहीं, मर्द रोते नहीं, रोना कमजोरी की निशानी है, बट एक्चुअली जो रोना है वो एक कमजोरी नहीं है और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. ठीक है, अपनी एकता, इमोशंस आज अनुराधा ने को. ना उनके इंस्टाग्राम स्टोरी में वो डाला हुआ है, अनुराधा चावला ने. शी वाज मेंशनिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम अ वेरी गुड बुक, आई थिंक ट्यूसडे मॉरिस. तो उसके ऊपर वही लिखा हुआ उन्होंने, आप देख लेना. दैट क्राइंग इज रियली गुड एंड आई आल्सो एग्जैक्टली. क्राई. या क्राइंग, यस यस. रोना है तो रोना है. हाँ, मधु जी विल आल्सो आपकी एग्री इसी टू बात पे मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी. आई वाज इन वाराणसी फॉर द वाटर फेस्टिवल. सो हम लोग रात को डिनर के लिए बैठे हुए थे. सो एवरीबडी वाज शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, एंड कुछ पेरेंट्स की बात होने लगी. अब हम लोग उस उम्र में हैं जब किसी के पेरेंट्स हैं, किसी ने पेरेंट्स को खो दिया है. सो वी ऑल आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. आई ऑल्सो लॉस्ट माई फादर 1 year बैक. तो आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, एंड मेरे आंसू निकल आए. तो इनिशियली आई वॉज फीलिंग एम्बैरेसिंग, बट लेकिन फाइनली आई सेड कि नो, दीज आर द इमोशंस शुड कम आउट. सो जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हम अपने अंदर जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत सारी चीजें अपने अंदर पाल लेते हैं सोसाइटी के लिए, या हमारी ब्रिंगअप ऐसी होती है. सो बट एक्चुअली द ह्यूमंस आर नॉट लाइक दिस. दे आर बॉर्न टू लिव फ्री विद द इमोशंस, उन्हें अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना. एंड आई फील जितना हम अपना अंदर दबाते हैं उतना ही हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं और अपनी हैप्पीनेस से और हेल्थ से दूर भागते हैं. सो इम्पॉर्टेंट, जैसे आपने कहा लेटर टू गॉड, इट्स अ द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, है ना. जब आप खुद से अपने इनर में, अपने अंदर झांकते हैं और उस परमात्मा से बात करते हैं, सो इट्स नथिंग लाइक दैट. सो दिस इज द actual spirituality. And during this discussion I was thinking about it कि हम लोग ना घर में तो, बाहर तो बहुत अच्छा, एंड immediately you said these things कि घर में तो हम बहुत अच्छा, ये हाँ जी, हम्म बड़े हम्म रिस्पेक्टफुली बात करते हैं. लेकिन जब घर में आते हैं तो वी फील यार अच्छा ठीक है, हम गाली गलौज भी कर लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, वी विल नेवर फील कि नहीं किसी की इमोशंस हर्ट होती हैं. बट एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारे सबसे करीबी हैं,
हमारी फर्स्ट रिस्पेक्ट तो उन्हीं के लिए होनी चाहिए. फर्स्ट आवर पेरेंट्स, आवर ब्रदर बिल्कुल. सिस्टर, आवर फैमिली, आवर हस्बैंड और वाइफ, हमारे बच्चे. लेकिन हम अनजाने में और एक्सक्यूज कर देते हैं कि भाई तुम तो हमारे अपने हो. अब तुम्हारे सामने भी हम लोग नाटक नाटक नहीं होता है ये. एक्चुअली में दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर हम अपने आसपास जो लोग हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, अगर हम उन्हीं को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो जो हम बाहर रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो एक बनावटी है, वो एक मुखौटा है जो हम घर से बाहर पहनकर निकलते हैं. सो यू नो द एक्चुअल well-being is be what you are everywhere. बाहर की और घर के मुखौटे नहीं होने चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इज द स्पिरिचुअलिटी. And spirituality is well-being and connecting to the nature. Madhuji, I am also a nature lover, and by the grace of God, I adopted this as a profession also. So it's a blessing कि भगवान ने मुझे कुछ ऐसा दिया, कुछ ऐसे विजन्स बनाए कि जो कि नेचर से कनेक्टेड हैं, जिसमें हमारी ह्यूमन इंटरेक्शंस और फुल जो कनेक्शंस हैं वो नेचर के साथ हैं. एंड थैंक यू सो मच जो मुझे आप सबके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, एंड आप सबसे बहुत सीखने का मौका मिल रहा है. एंड इट्स लवली these that we are doing these sessions. And for your information and to our audience जो भी अब सुन रहे हैं या जो बाद में इस वीडियो को सुनेंगे, we are starting 3 more new sessions from next month. One is greener happier tomorrow, which will be on first Saturday of every month. Another is my waste my responsibility. Okay, we are not supposed to create the dump yards. We are here to paint our earth green. So we are starting these sessions, my waste my responsibility, and another session, art. Art is a creative form of communication. So we are starting fourth Saturday of every month with emerging trends in art, where the renowned as well as the young artists will share their experience and various forms of art, various art forms.